مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے جموں کے زوراور آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے بہت سی اسکیموں اور ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر خزانہ نے جموں میں صنعتی ترقی کے لیے 200 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ انہوں نے بہت سے استفادہ کنندگان کو اپنے یونٹ شروع کرنے کے لیے لون چیک بھی حوالے کیے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اب ترقیاتی اسکیموں کے فائدے تمام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے LG منوج سنہا کی کوششوں کی ستائش کی۔ نرملا نے کہا کہ لون حاصل کر کے بینکوں کو پیسے واپس نہ کرنے والے افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد سے رقم واپس حاصل کی جا رہی ہے۔ Since after 2019, we are seeing the Union Territory of Jammu and Kashmir go through a rapid progression. Projects which have been waiting for a long time are getting rapidly implemented. Sections of societies which have never had the opportunity of receiving any assistance from the government are getting it. And genuine business which can be conducted, which have no other way of getting or accessing credit, are also being provided credit. Those who took the loans, let it to become an NPA and didn't pay back the taxpayers' money, which is what is in the banks, we as a government have actively pursued them, whether they are in this country or whether they have gone away from India, and ensured that their properties are attached, ensured that the properties are through a legal process sold or auctioned out, and those monies have been paid back to the banks. We shall get back every money which has been taken from the bank and not serviced. It will come back to the banks. I want to assure the people of Jammu that this state will now be a lot more transparently governed. Banking will be available for each one of us, and taxpayers as well will be honored. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے LG منوج سنہا نے کہا کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، تمام لوگوں کے مساوی ترقی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ مرکز اس بات کو یقینی بنانے میں ہماری پوری مدد کر رہی ہے کہ جموں اور کشمیر میں کاروبار کے اچھے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو آج مختلف بینکوں نے مختلف اسکیموں کے تحت سادہ شرح سود پر قرضے فراہم کیے ہیں، جس سے صنعتی ترقی کے فروغ میں مدد ملے گی۔ اب تمام زیر التوا پروجیکٹوں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ پالیسی اور امپلیمنٹیشن کا جتنا زبردست فرق جموں کشمیر میں تھا، میں سمجھتا ہوں شاید دیش کے کسی انیہ بھاگ میں نہیں تھا۔ کھائی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ لینگویجنگ پروجیکٹ کے نام سے ایک الگ ہیڈ بنانا پڑا تھا۔ 15 سال 20 سال کی پریوجنائیں اب جا کر کے پورا ہو رہی ہیں۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے پرسنتا ہے کہ کل 1100 ایسے پروجیکٹ پورے کیے گئے ہیں جو سالوں سے اٹکے تھے۔ اب پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری اور کمپلیشن کی تاریخ بھی طے کی جاتی ہے۔ ایک نئی ویوستھا پردھان منتری جی کے نردیشن میں جموں کشمیر میں شروع ہوئی ہے۔ پچھلے ایک سال میں 11 نئے ٹنل کی پریوجناؤں کو شروع کیا گیا ہے۔ 4 لین گرین فیلڈ جموں رنگ روڈ کا کاریہ تیز گتی سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اگلے سال جموں میں لائٹ میٹرو کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ انیہ راجیوں کی طرح 22 گھنٹے بجلی گرامین چھیتروں میں بھی رہے، اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ ادھم پور کے 1000 میگا واٹ والے پکل ڈل، 624 میگا واٹ والے کشتواڑ کے کھیرو، 850 میگا واٹ کے رٹلے پاور پروجیکٹ پر کام تیز گتی سے چل رہا ہے۔ ان سبھی پریوجناؤں میں زیادہ سے زیادہ استھانیہ لوگوں کو روزگار بھی دیا گیا ہے۔ سرینگر میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائیبونل کی پہلی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے ملازمین کے امور اور تنازعات کا حل نکالنے کے سلسلے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اولڈ اسمبلی کمپلیکس سرینگر میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائیبونل کا افتتاح ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا۔ جموں کشمیر کے چیف جسٹس پنکج متل بھی اس وقت موجود تھے۔ کشمیر شاید ایک واحد ایسی یونین ٹیریٹری ہے یا ریاست ہے جہاں پر کہ ایک نہیں دو CAT کے بینچ قائم کیے جا رہے ہیں۔ 5 اور 6 اگست 2019 سے پہلے محض ایک بینچ ہوا کرتا تھا کیٹ کا چندی گڑھ میں، جو جموں کشمیر، پنجاب، ہماچل پردیش اس سارے کے سارے خطے کو کیٹر کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس 2 بینچ ہے۔ جموں کا بینچ لداخ کے ضلع لیہ کو بھی کیٹر کرے گا، جبکہ سری نگر کا بینچ لداخ کے ضلع کارگل کو کرے گا۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए ये ख़ास इक़दाम इनके लिए किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस, और ईज़ ऑफ गवर्नेंस का आखिरकार मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और वज़ीर आज़म की क़यादत वाले नए हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान काफ़ी पुरअमंग हैं और वो मुल्क की तरक्की में अपना ताउन पेश करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह के मुताबिक मोदी हुकूमत नौजवानों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। Youth of Kashmir wants to move on and they have the capacity to move on. They have huge potential and they are very aspirational. And he wants to be part of the development journey led by Prime Minister Modi. He does not wish to miss the opportunity. And we have no right to deny him that opportunity. All that we can do to win his regard and respect is to become facilitators in the realization of his dream and his opportunity. And if Almighty has given us this chance to do so, let's live up to it. मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी वादी चनाब में ज़िला डोडा का दौरा करेंगे। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले अवामी जलसे से गडकरी खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर कल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। कल के प्रोग्रामों के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। दिसा कापरन रोड और सिंहपुर वाइलो टनल बनने की लोगों को कवी उम्मीद है। लंबे अरसे से लोग दोनों प्रोजेक्ट बनाने की मांग करते आ रहे हैं। 18,726 करोड़ प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें 21 प्रोजेक्ट। आप सोच सकते हो कि ये जिला डोडा के लिए कितनी एक बहुत बहादुरी का काम है। उसमें मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री बैठे हुए, और अपने दोनों एमएलए भदरवा से दिलीप सिंह परिहार जी और डोडा से शक्तिराज परिहार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके प्रयास से रात दिन इन लोगों ने मेहनत की और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। उनको बहुत तवक्काएं हैं कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे देके जाएंगे। हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त खिते जनाब की, वो है एक देसा कपरन जो है ये रोड पॉलिसिस का टनल जो है वो बनना चाहिए। उसके बाद जो है वो वाइलू टनल है वो बनना चाहिए, जिससे ये होगा कि ये जो हमारा जो इलाका सारा है ये कश्मीर के साथ कनेक्ट होगा और लोगों को, क्योंकि हमें इलाज की बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आज दर्जीपुरा कुपवाड़ा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो लोगों की मुश्किलात को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाएंगे। 15 रुपये दिवान तुमलो त्रख तश रेत 6,000 से 7,000 से बिजली डिपार्टमेंट बिल कत अनो 5 रुपये दोस कर मजूर तुम्हें 5 रुपये जेना क्या पालो बच जनान मोहनी ये द्रामत ये गो कि मजबूर गई तेल द्रास सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सान बिलन दी नजर हम क्या कर अगर 5 बिल 6,000 से 10,000 बे त्रेन आब इवन मेरे पास करीबन 2 दिन से 200-300 लोग आए कि जो बिल्स आ रहे हैं वो अचानक से रेट्स भी उनकी बढ़ गई है। जब हम देखते हैं कि पावर तो है ही नहीं, इस साहब को जितने भी हमारे पीडीडीज के एम्प्लॉयज़ को इनके साथ एक मीटिंग लेनी चाहिए ताकि जो है विंटर्स में। लेह में सिंधु दरिया के घाट गंदे होने पर मुकामी इंतजामिया ने तशवीश जाहिर की है। सैकड़ों अकीदतमंद यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। सिंधु दर्शन के लिए हर साल जून में अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। इस साल सिंधु में पुष्कर के रसूम अंजाम देने वालों का तांता बधा हुआ है। यहाँ 1 दिसंबर तक मजहबी रसूम की अंजामदही का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान घाट पर जा बजा कचरा कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। लेह के लोग ऐसी सूरत हाल को देखकर काफ़ी नाराज़ हैं। इंतजामिया ने आने वाले अकीदतमंदों को हिदायत दी है कि वो सिंधु को गंदा ना करें, बसूरत दीगर उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। बांडीपुरा के कोयल मुकाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साला ट्राइबल लड़की ने बांडीपुरा के कुछ नए सियाहती मकामात को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नाम की एक किताब लिखी है। सियाहत के शोबे में तालीम हासिल कर रही 22 साला शबनम बशीर का कहना है कि बचपन से ही इनका ख्वाब था कि वो अपने इलाके के पोशीदा सियाहती मकामात को दुनिया के सामने लाएंगी। शबनम के मुताबिक उसने 3 साल तक नागमर्ग, नशनी,
लशकोट और दीगर इलाकों की बारीक बीनी से तहकीक करके इन पोशीदा सियाती मकामात के हवाले से अपनी किताब में तमाम तफसीलात दर्ज की हैं ताकि इन मकामात को सामने लाकर लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए जा सके। किताब की रस्म रौनमाई के दौरान DC बांडीपुरा ने शबनम की सराहना करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने 8 नए सियाती मकामात को फ़रोग़ देने का अमल शुरू कर दिया है। बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो यूथ है वो इस चीज़ के लिए अवेयर है कि हमारे यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल के बाहर आ रहे हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये रहा जो आज हमने ये बुक रिलीज़ की है, जो कि हमारे अपर एरियाज़ है बांडीपुरा के, वहाँ का टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में बताती है। और साथ ही साथ जैसे कि ये जो इन राइटर हैं, इन्होंने स्पीच में भी ये बात बोली कि इस टूरिज़्म सेक्टर के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने ये बताया कि जब इन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि एक गाइड से लेके अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर से लेके एक ट्रैकिंग यूनिट चलाने से लेके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें यहाँ का यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है, इसकी 3 विलेजेस कोयल मुकाम, मलनगाम और आलूसा, इनके टॉप पे कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो हिडन थी, अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। तो मैंने फिर इन पे काम किया, इनको एक्सप्लोर किया। तो ये काम मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ इनको एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया क्योंकि फिर वहाँ पे मुझे देखना था कि इसमें पोटेंशियल है टूरिज़्म के लिए या नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे खुद रिसर्च किया, खुद मैं वहाँ पे जाती थी विंटर में भी और समर्स में भी, तो मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।